Let's start this exercise 4.2. So we have discussed all the concept, the properties, 6 properties we are going to use in this exercise to solve the questions. That properties we have already discussed. Now let's start with this question number 1 here. So if you look at the question here, using the properties, that properties we have already discussed of the determinant and without expanding. इसको expand नहीं करना है, जैसे determinant को हम लोग expand कर देते हैं किसी भी रो के along या column के along, without expanding. In question 1 to 7, prove that. So we have to prove this with the help of the properties without expansion. So look at this question number 1 here. So let me take the left hand side here. Let us take the LHS. So LHS is equal to given here. So we have studied the property number 5. So this can also be written like this. It can be written as 2 separate determinant. हम लोग 2 separate determinant बना सकते हैं, ठीक है. फर्स्ट रो सेम रहेगी, सॉरी फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा XYZ, सेकंड कॉलम सेम रहेगा ABC, एंड हियर ऑल्सो फर्स्ट कॉलम सेम एंड सेकंड कॉलम सेम. सो प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो इफ इट इज द टर्म इज द सम ऑफ 2 टर्म्स, तो ये 2 टर्म का सम है यहाँ पे थर्ड कॉलम में. सो इट कैन बी रिटन एज सेपरेटली एज द 2 डिटरमिनेंट. तो फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट में कौन सी टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे XYZ, और सेकंड वाले में हम लोग लेंगे ABC, right? And if you remember a property, that is the property if the 2 rows or columns are identical. यहाँ पे आप देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, XYZ, और यहाँ पे देखिए कॉलम 2 एंड कॉलम 3 is identical. Yes, columns are identical. So if the 2 rows or 2 columns are identical, then the determinant of that is equal to 0. So it's 0 plus 0. So we can say that it's equal to 0 is equal to RHS. Right? So that's all. So we have used the 2 properties here, and after doing that properties we can find out the determinant of this. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 2 here. In this question also same we have to prove it. A minus B, B minus C, C minus A. So we can apply a property here. एक property हम लोग इसमें apply कर सकते हैं. That row 1 can be written as row 1 plus row 2 plus row 3. तो रो 1 की जगह पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे रो 1 plus row 2 plus row 3, so after applying this property, so what we have obtained. So if I have taken LHS here, LHS मैंने लिया है, and I have applied the property here, right? So मैंने second row पे कोई भी property नहीं लगाई है, तो second row is same, and third row is also same. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इनको ऐड करूं, if we add all these 3, so look at this, इसका एडिशन A minus B, B minus C एंड C minus A, तीनों को ऐड करें तो क्या होगा, देखो B से B कट जाएगा, C से C एंड A से A. तो व्हाट द एलिमेंट वी हैव ऑब्टेन्ड हियर, इट्स 0. सिमिलरली अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे, रो 1 प्लस रो 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, so it also comes out to be 0, and similarly this also comes out to be 0 after adding it, right? So there is one more properties we have discussed, that property is अगर कोई भी element, if a single row or a column, all the elements are equal to 0, in that case that determinant value is 0. अगर किसी भी determinant की कोई complete row के सारे element 0 हो गए हैं, या किसी column के सारे element 0 हो गए हैं, so that determinant value is equal to 0 and it's equal to RHS. So that's all about this question. So we have applied a single property here, right? Now let's move to the next question. Look at this question number 3 here. It is 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86. So we have to solve it. Let us take the left hand side, right? So left hand side ली मैंने यहाँ पे, and इसको हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है. So विदाउट एक्सपेंशन, अगर हम लोग इसको एक्सपेंड कर दें सिंपल प्रोसीजर से, तो एक्सपेंड करके 0 आ जाएगा, बट हमें बिना एक्सपेंशन के करना है. 2, 3, 5 एज इट इज लिख लेता हूं, 7, 8, 9 एज इट इज, एंड इट 65. 65, ओके. 65 को कैसे लिखें हम लोग, इनको ब्रेक करना है हमें.
वी नीड टू ब्रेक इट एंड यूज इट। एंड इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, ब्रेक करते टाइम 2 और 7 का यूज हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर +2 यूज कर लेता हूं, ठीक है, और 7 को यूज कर लेता हूं 7। अब 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 20 ये 65 आ जाए, 7 इंटू समथिंग 7, 7 9 63। ओके 7 इंटू 9, राइट, 7 9 जा 63 +2, राइट। अब मुझे इस 3 को और 8 को भी यूज करना है। इनको मैं क्यों यूज कर रहा हूं अभी आपको पता लगेगा। तो 3 को मैं यहाँ पे +3 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे इसको प्लस, इसको 5 को हम यूज करूंगा यहाँ पे +5। तो मैंने इनसे आइडिया ले लिया कि मुझे यूज क्या करना है। मुझे 8 को यूज करना है और 9 को यूज करना है। अब आपको समझ में आएगा एक नेक्स्ट स्टेप में कि हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, और आपके माइंड में ऐसी चीजें कैसे आएंगी। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 75 आ जाए। 8 यस 8 9 जा 72 +3। अब ये 86 आ जाए, तो 9 मल्टीप्लाइड विद 9। यस 9 9 जा 81 लाइक दिस। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया है, वो 65 75 और 86 को ब्रेक कर लिया है। ब्रेक इस तरह से किया मैंने कि 2 और 7 फर्स्ट रो के भी सारे एलिमेंट आ जाएं, फर्स्ट कॉलम के और सेकंड कॉलम भी यूज हो जाए। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई अ प्रॉपर्टी नंबर 5 हियर। सो अ सिंगल डिटरमिनेंट कैन बी रिटन एज, उसको दो डिटरमिनेंट में भी लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन एज टू सेपरेट डिटरमिनेंट, राइट। सो टू सेपरेट डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, ये तो सेम रहेगी, फर्स्ट कॉलम सेम सेकंड कॉलम सेम, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम सेम एंड सेकंड कॉलम सेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा ये दो एलिमेंट से बना हुआ है, दो टर्म है 7 इंटू 9 और 2। तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी 7 इंटू 9, यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 9 यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 9, ठीक है, 9 इंटू 9। अब यहाँ पे लिखूंगा 2, ये सेकंड टर्म यहाँ पे लिखूंगा 2 3 और 5, ऐसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5 वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, 2 3 5, राइट। नाउ इफ यू लुक एट दिस, इन दिस डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट में अगर आप देखेंगे तो 9 इज कॉमन फ्रॉम दिस कॉलम 3, कॉलम 3 से 9 कॉमन आ रहा है, तो उसको मैंने बाहर लिख लिया है। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2 3 5 7 8 9 and it's 7 8 9 plus, look at this in this column, if अगर आप इसमें देखेंगे तो column 1 and column 3 is identical। तो हमारी प्रॉपर्टी होती है if the two columns are identical or the two rows are identical in a determinant then its value is equal to 0, right। अब इसमें देखिए, इसमें भी देखिए ये कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो 9 इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS, राइट। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे ये क्यों इस तरह से मल्टीप्लाई किया था 7 इंटू 9 प्लस 2। तो मुझे यहाँ पे 2 3 5 जब मैंने यहाँ पे यूज किया 2 3 5 ये पहले वाला, तो मुझे पता लग गया था कि ये प्रॉपर्टी जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे हो गए, ठीक है। और ये मैंने 7 8 9 को इसलिए यूज किया कि मुझे लगा था कि जब ये एक्सपेंड, जब इसको प्रॉपर्टी 5 लगा के दो डिटरमिनेंट बनाऊंगा तो यहाँ पे भी 7 8 9 आ जाने चाहिए, तो ये डायरेक्टली इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। सो लाइक दिस वी हैव टू थिंक इट एंड वी कैन सोल्व इट बाय अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टीज विदाउट एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो इनमें एक्सपेंशन नहीं करना है। अगर प्रॉपर्टीज से बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज से सोल्व कीजिए, तो हमें प्रॉपर्टीज से ही सोल्व करना होगा। और अगर आप इसको एक्सपेंड करके सोल्व कर देते हैं एंड दे सेज दैट सोल्व इट बाय प्रॉपर्टी, तो आपको वहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 7 क्वेश्चन ऐसे हैं स्टार्टिंग के जिनको उन्होंने बोला है स्पेसिफिक कि प्रॉपर्टी से ही सोल्व करना है। तो हमें सॉरी प्रॉपर्टी से ही सोल्व करना है, एक्सपेंड नहीं करना है, बिना एक्सपेंड किए हमें इसको सोल्व करना है। तो हमें इसको बिना एक्सपेंड किए ही सोल्व करने की कोशिश करनी है क्वेश्चंस को। Now look at this question number 4 here. In this question also we need to prove it. So if you look at this question, if I apply the property here, अगर मैं एक property यहाँ पे लगाऊं A B B C and AC. Okay. So let me apply the property here. If I apply the property that column 2 को मैं लिख लेता हूं column 2 plus column 3 and LHS मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड एंड column 2 कैन बी रिटन एज column 2 plus column 3। सो उससे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दूं इसके, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस 1 1 1 बी सी सी ए बी, ऐसे लिख सकते हैं अगर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दें। इफ ए इज मल्टीप्लाइड विद बी एंड ए इज मल्टीप्लाइड विद सी, ए सी, ये आएगा बी सी प्लस ए बी, और ये आएगा ए सी प्लस बी सी, राइट। सो दिस द लेफ्ट हैंड साइड, आई हैव टेकन द लेफ्ट हैंड साइड हियर, एंड यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई, तो मुझे क्या ऑब्टेन्ड होगा यहाँ पे, देखिए फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, फर्स्ट रो इज सेम 1 1, सॉरी फर्स्ट कॉलम इज सेम, कोई ऑपरेशन। सेकंड कॉलम पे क्या ऑपरेशन लगाया, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को ऐड किया है, तो देखिएगा क्या आएगा, ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये देखिए इसको इससे ऐड कर दिया, टर्म्स रीअरेंज कर लिए मैंने, इसको इससे ऐड करेंगे तो सेम आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये भी सेम आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, इनको इससे ऐड करेंगे, एंड दिस इज द सेम, दिस टर्म इज सेम ए बी प्लस ए सी एंड बी सी प्लस ए बी एंड ए सी प्लस बी सी, ये सेम रहेगी। नाउ व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे इसमें सेकंड कॉलम से आप ये देखेंगे तो दिस इज द सेम थिंग इन द सेकंड कॉलम कमिंग अगेन एंड अगेन, सो दिस थिंग वी कैन टेक इट एज कॉमन, सो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कैन बी टेकन एज कॉमन फ्रॉम हियर, सो व्हाट इज रिमेनिंग इनसाइड द ब्रैकेट इज, जो रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे कॉलम 1 होगा 1 1 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 1 1, एंड इट इज ए बी प्लस ए सी and it is BC plus AB and it is AC plus BC. So if you look at this here, so in this the two columns are identical, तो column 1 and column 2 are identical, तो ये दोनों identical आ रहे हैं, तो identical आते हैं तो क्या होता है, then determinant is equal to 0, according to the property we have discussed, determinant की value 0 आएगी and it's equal to 0, it's equal to RHS. Right, I hope this question is clear to you all. Okay, look at this question 5. So let us take the left hand side in this question, and this left hand side I am applying the property here on this left hand side, so I am writing it in the two determinant, इसको मैं दो determinant की form में लिखने जा रहा हूँ, so this is property number 5. So the first row is same, b plus c, q plus r and y plus z. Second row is also same, c plus a, r plus p and z plus x, and here I am going to write abc, ये दो टर्म से बना हुआ है यहाँ पे, this third row I am going to break this third row, it written as a, it is p and it is x, और यहाँ पे आ जाएगा b एंड यहाँ पे आ जाएगा q और यहाँ पे आ जाएगा y। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिंगल एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, सो मैंने इनको सिंगल एलिमेंट में रिड्यूस किया, इट कैन बी रिटन एज बी प्लस सी, क्यू प्लस आर एज इट इज, एंड वाई प्लस जेड, एंड इट्स सी प्लस ए, इट्स आर प्लस पी एंड इट्स जेड प्लस एक्स, राइट। सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ओके। सो सपोज दिस इज एनी del 1 and suppose this is del 2, so it is the sum of these two, so let me apply the properties separately on del 1 and this thing. सो मैं del 1 ले लेता हूँ और del 1 पे प्रॉपर्टी लगाता हूँ, सो del 1 पे प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करता हूँ, पहले मैं del 1 को सोल्व कर लेता हूँ, सो del 1 पे प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की, इस पे प्रॉपर्टी लगाता हूँ R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, सो आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी व्हाट आई हैव ऑब्टेन्ड हियर, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, इफ आई अप्लाइड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, तो फर्स्ट रो सेम रहेगी, फर्स्ट रो इज सेम, इट्स B प्लस सी, इट्स q प्लस r एंड इट्स y प्लस z, तो सेकंड रो में चेंज होगा, देखो c प्लस a में से a को माइनस करेंगे, सॉरी इट्स r3 लूंगा मैं यहाँ पे, नॉट r, इट्स नॉट r1 r3, तो यहाँ पे मिलेगा c, इट रिड्यूस इनटू c, इट रिड्यूस इनटू r, अगर p माइनस करेंगे तो, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आएगा z, राइट, एंड दिस apx एज इट इज। Now again I am going to apply the property here, the property अब मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, R1 को चेंज करूंगा क्योंकि सिंगल मुझे चाहिए वहां पे, तो R1 में से किसको माइनस कर दूं, R2 को माइनस करना होगा क्योंकि C माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो del 1 हमारे पास आ जाएगा, del 1 कैन बी रिटन एज
फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी, देखो बी प्लस सी में से सी को माइनस करेंगे तो इट्स बिकम बी, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे वाई, राइट। और नीचे आ जाएगा सी आर जेड और यहाँ पे ए पी एक्स एज इट इज। ये मैंने इसमें डेल वन में प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं, ठीक है। ऐसे ही सेपरेटली मैं इधर डेल टू में भी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेता हूँ, कुछ यहीं पे लिख लेता हूँ ऑन दिस साइड, राइट। सो लेट मी अप्लाई द प्रॉपर्टीज इन डेल टू ऑल्सो। सो डेल टू में प्रॉपर्टी में अप्लाई करता हूं, सबसे पहले R1 को लिखता हूं, R1 टेंस टू नोट R1 टेंस टू R1 माइनस R3। ऐसा क्यों किया मैंने, कैसे मुझे पता लगेगा, देखो यहाँ पे B प्लस सी है और यहाँ पे B है, अगर रो टू से माइनस करूंगा जैसे इधर माइनस किया तो वो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा डेल टू इज इक्वल टू, आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, सो इट बिकम B, ये चेंज हो जाएगा C, देखो B प्लस सी में से B को माइनस करेंगे तो C, और यहाँ पे Q माइनस होगा तो R, and y plus z minus y, it's become z, right, and all that things as it is, ये सब सेम रहेगा, c plus a r plus p z plus x and this is b q y as it is, right। now अब देखिए इसको सिंगल टर्म बनाना है, इसको सिंगल टर्म किससे बनेगी, c माइनस करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आता है रो टू में से किसको माइनस करें कुछ फायदा होगा, क्योंकि रो थ्री को माइनस करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो रो वन को माइनस करते हैं। So then del 2 can be written as, देखिए सी आर जेड एज इट इज, एंड रो टू में से इसको c माइनस करेंगे तो c प्लस ए माइनस सी कैन बी रिटर्न एज a, यहाँ पे p r प्लस पी माइनस आर पी जेड प्लस एक्स माइनस जेड एक्स, और ये आएगा b q y, ठीक है। अब आप देखिए इसमें प्रॉपर्टी में अप्लाई करने जा रहा हूं, अब हमें प्रूव क्या करना है, एपीएक्स ऊपर है, फिर बी क्यू वाई है और फिर सी आर जेड है, एपीएक्स ऊपर फिर बी क्यू वाई और फिर सी आर जेड। इसको इंटरचेंज कर रहा हूं, देखिए डेल वन, रो वन को इंटरचेंज कर रहा हूं रो थ्री से, तो ए ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई हैव ऑब्टेन्ड देन, फिर मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ये इंटरचेंज करने के बाद, और फिर इसके बाद इंटरचेंज कर लेते हैं पहले, ओके। तो देखो इंटरचेंज ए पी एक्स तो यहाँ पे आ जाएगा और बी क्यू वाई यहाँ पे आ जाएगा और सी आर जेड यहाँ पे। अब क्या होगा, इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है, दिस प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस, माइनस साइन आ जाता है, तो डेल वन, Yes, sir. यस माइनस साइन आ गया, ओके। आफ्टर दैट इसको फिर से इंटरचेंज करता हूं क्योंकि मुझे एबीसी सीरीज सीक्वेंस में चाहिए, तो फिर से इंटरचेंज करता हूं, फिर किस इंटरचेंज किसको करें, अब इंटरचेंज करते हैं रो टू को रो थ्री से, सो इंटरचेंज करेंगे तो एपी एक्स और ये हो जाएगा बी क्यू वाई और यहाँ पे हो जाएगा सी आर जेड, फिर से माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, राइट। ऐसे इनको इंटरचेंज करते हैं डेल टू को, सो डेल टू में ऑपरेशन लगाता हूं, रो वन को इंटरचेंज करता हूं रो टू से, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, एपीएक्स ऊपर चला जाएगा, सी आर जेड यहां पे आ जाएगा एंड बी क्यू वाई यहां पे, फिर इंटरचेंज कर देते हैं रो टू को रो थ्री से, ठीक है। सो डेल टू वी हैव ऑब्टेन्ड, यहाँ पे माइनस साइन लगाना भूल गया मैं, इंटरचेंज जब करते हैं किसी रो को तो माइनस साइन आ जाता है, ये सेम यहाँ पे बी क्यू वाई और यहाँ पे सी आर जेड। अब जो हमें प्रूव करना था, अगर आप उसको देखेंगे तो हमें जो प्रूव करना था डेल एलएचएस हमने लिया था, एंड इट इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू, ठीक है। डेल वन को आप इसको यहाँ पे एक माइनस लगा के फिर ये प्लस हो जाएगा, इसको इससे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए पी एक्स बी क्यू वाई एंड सी आर जेड प्लस ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, इनको ऐड कर लीजिए, देन यू विल गेट द आंसर।
इनको आप ऐड करेंगे देन इट्स इक्वल टू 2 APX BQY CR Z is equal to RHS. Hence proved. So like this we can prove it. तो मैंने इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखा है हर एक स्टेप को. So थोड़ा लेंथी लग रहा होगा आपको देखने में, but you can directly skip the some steps and directly you can write that things. So I hope this question is clear to you. Now, Sir, yes. सर वो पिछले अभी इस क्वेश्चन में कुछ पूछना था आपको आपसे. बताइए. सर इधर स्टार्टिंग पहले स्टेप में हमने नीचे आपने ए मतलब हमने जो नीचे a प्लस बी p प्लस q x प्लस y को हमने अलग अलग दो में लिख लिया. तो ऐसे ही सर ऊपर वाले भी तो दोनों रोज में ऐसे ही लिखा था, हमने उन्हें भी ऐसे क्यों नहीं लिखा और उनको स्टेप बाय स्टेप अलग क्यों करते गए? मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से कि अगर दो चीजें प्लस हो रही है तो अलग अलग लिख सकते हैं ना उन्हें सीधे. लिख सकते हैं इससे ना, लिख सकते थे उसको भी, लेकिन जो ये आप जो डेल 1 है अगर इसको आप ब्रेक करते हैं अब तो इससे भी दो बन जाते हैं यहाँ पे. यस सर. तो सर हमने नीचे वाले ही क्यों किया, मैं ये पूछूं. किसी में भी कर सकते हैं, ऊपर वाले में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं. अच्छा ओके सर. वो कंपलसरी नहीं है, ऊपर वाले को कर लीजिए आप, किसी को भी कर सकते हैं. उसमें ये प्रॉपर्टी हम लोग साइड बाय साइड बार बार भी लगा सकते थे तब भी आंसर आ जाता, लेकिन उससे 8-9 डिटरमिनेंट बन जाते बड़े बड़े. ओके सर. ये जरूरी नहीं है कि अब मैंने नीचे वाले को लगाई है तो प्रॉपर्टी नीचे वाले को किया है तो आपको वही करना है. आप ऊपर वाले को भी करेंगे तो जब भी सही आएगा, किसी को भी कर सकते हैं. ये इसमें याद कुछ करना नहीं है, क्वेश्चंस में तो स्टेप्स लगाते जाना है, कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है. so you can proceed with anything that comes in your mind और आंसर आएगा उससे भी. सर यस, और जैसे जयस सर बता रहे तीनों थे. को हाँ. सर तीनों को एक साथ कर सकते हैं, एक साथ तीनों को मतलब सेपरेट करते तीनों को एक साथ. तीनों एक साथ सेपरेट नहीं होंगे, तीनों एक साथ नहीं सेपरेट होते. एक एक रो के जो एलिमेंट दो टर्म्स हैं उनको एक बार में सेपरेट किया जाता है. तो इनको अगर आप तीनों को सेपरेट करेंगे तो 9 डिटरमिनेंट बनेंगे आपके पूरे कंप्लीट. और जैसे आपने किया है एक वैसे भी कर सकते हैं, तीनों को ऐड करके, जैसे जयस ने किया था, तीनों को ऐड करके 2 कॉमन आ जाता है, फिर उसको भी आप उसी तरह से भी एक्सपेंड कर सकते हैं. I hope this thing is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 6. Question 6 देखिए. लिख लीजिए इसको अपनी नोटबुक में, क्वेश्चन 6 को बिना एक्सपेंड किए हमें इसको प्रूव करना है इक्वल टू 0. राइट इट इन योर नोटबुक. Okay, let me explain this. It is little bit different in this question. Look at this question number 6. In this question, if I take the left hand side, so the left hand side is this, and I am going to apply the operation in the left hand side. Suppose I am going to multiply row 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर row 1 multiplied with C, I am going to multiply row 1 with C. So what will happen in that case on applying this? So del जो हमारे पास है, del is equal to row 1 C से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, row 1 is multiplied by C, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? This element is 0 multiplied with C 0, और यहाँ पे A C और यहाँ पे माइनस B C. ठीक है, C से मल्टीप्लाई किया इस एलिमेंट को, माइनस A 0 माइनस C B C 0. तो C से मल्टीप्लाई किया तो 1/C से मैंने यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ये C कॉमन लूंगा यहाँ से फर्स्ट रो से तो वो C को C से कैंसिल कर देगा और डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया आपको. आपको कैसे पता लगेगा C से मल्टीप्लाई करना है, अभी बताता हूं. इसके बाद आपको क्या करना है, रो 1 को ऑपरेशन लगाना है, रो 1 माइनस B
रो 2, बी से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करना है, राइट। तो देन वी हैव ऑब्टेन्ड दिस डिटरमिनेंट डेल कैन बी रिटन एज 1/2 आफ्टर दिस ऑपरेशन। दिस देखो रो 1 में से माइनस करना है बी रो 2, सो इसको बी से मल्टीप्लाई करोगे एलिमेंट को तो बी से माइनस ए भी आएगा, 0 से माइनस करेंगे तो ए भी आएगा, AC माइनस 0 AC माइनस BC माइनस इसको बी से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, इट्स बिकम प्लस BC, राइट। एंड दिस एलिमेंट सेम, माइनस A 0 minus C, B, C, 0, right? I hope up to here, up to this step it's clear to you. Now from this element, it's not 2, it's C. Okay. यहां से देखिए फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ रहा है, ये तो कट के 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो से कॉमन आ रहा है A कॉमन आ रहा है तो A कॉमन ले लीजिए। A अगर कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आ जाएगा A, यहां पे बचेगा B, यहां पे C और यहां पे 0, राइट। यहां पे माइनस A 0 माइनस C एंड इट्स B C 0, राइट। एंड दिस कैन बी रिटन एज A अपॉन C इंटू 0, ये 0 के इक्वल होगा। वाई? बिकॉज रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अगर रो 1 कोई भी दो रो सेम होंगी या कोई भी दो कॉलम सेम होंगे देन दैट डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 and it can be written as it's equal to 0 and is equal to RHS. So like this we have to solve this question. अब मैं इसकी अप्रोच बताता हूं, मैंने अप्रोच कैसे किया इस क्वेश्चन को। अब मुझे यहाँ पे दिखाई दिया इसमें, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे आपको कैसे पता लगेगा कि इसको C से मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको B से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। मैंने देखा इस थर्ड रो को, किसी को भी देख सकते थे, मैंने थर्ड रो को देखा और मैंने सोचा कि कोई भी रो फर्स्ट या सेकंड थर्ड रो के जैसी बन जाए, ठीक है। मुझे थर्ड रो में C दिखाई दिया यहाँ पे, तो मैंने इसीलिए इसको C से मल्टीप्लाई किया कि मुझे C चाहिए था वहां पे, तो मैंने फर्स्ट में C से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे C दिखाई देने लगा, ठीक है। फिर मुझे A दिखाई दिया, यहाँ पे A है, इसको हटाना था तो मुझे क्या करना था, मुझे सब पे A लाना था। यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे A अगर आ जाता तो मैं क्या करता, उसको कॉमन ले लेता, जो मैंने किया अभी। तो मैंने सोचा कि इसको अगर B से मल्टीप्लाई कर लूं, ये तो 0 है तो ये तो A बना ही रहेगा यहाँ पे, इसको B से मल्टीप्लाई कर लूं A तो यहाँ पे आ ही जाएगा, A अगर इसमें प्लस माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे A नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया B से, सेकंड वाली को, ठीक है। तो ये मुझे B कैंसिल हो गया, यहाँ पे BC कैंसिल हो गए दोनों, ठीक है। यहाँ पे BC था तो मैंने इसको B से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गए, A कॉमन आ गया, फिर आगे आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। ऐसे मैंने इसको अप्रोच किया थर्ड रो के इक्वल बनाने के लिए किसी भी रो को। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन 7, लेट अस टेक द लेफ्ट हैंड साइड इन दिस क्वेश्चन। एंड लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको इसमें से A कॉमन दिखाई देगा फर्स्ट रो में से, सेकंड रो में B कॉमन है और थर्ड रो में C कॉमन है। लेट अस टेक दिस ABC कॉमन फ्रॉम हियर and what is remaining inside the determinant is, determinant के अंदर बचेगा हमारे पास A कॉमन ले लिया है, यहां से माइनस A बचेगा, यहाँ पे B बचेगा और यहाँ पे C, ठीक है। यहाँ पे B कॉमन लिया है तो A बचेगा, यहाँ पे माइनस B बचेगा और यहाँ पे बचेगा C। यहाँ से C कॉमन लिया है, A यहाँ पे रिमेनिंग होगा, B होगा और माइनस C, राइट। सो दिस ABC obtained here, then after that apply some operations। ABC ये है माइनस A, हमें चाहिए 4A² B² C², ओके। अब आप देखिए यहां से, अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां से देखो कॉलम 1 से A कॉमन आ रहा है, कॉलम 2 से B कॉमन आ रहा है और कॉलम C से C कॉमन आ रहा है। तो लेट अस टेक दैट कॉमन, तो बाहर A आएगा तो ये बन जाएगा बाहर A² प्लस B भी कॉमन आ जाएगा, C भी कॉमन आ जाएगा, A² प्लस B² प्लस C²। सो व्हाट इज रिमेनिंग इनसाइड द ब्रैकेट्स, इट्स रिमेनिंग इज -1 1 1, यहाँ पे 1 -1 1 1 1 -1, तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, राइट।
After that, apply the property here. That property is, suppose row 1 tends to row 1 plus row 2, right? And row 2 tends to row 2 minus row 3. So let us apply this operation. Then we have obtained a square b square c square as it is. रो 1 और रो 2 को ऐड करना है, सो इट बिकम 0, -1 एंड +1 0, 1 एंड -1 ऐड करेंगे 0, 1 एंड 1 इट्स बिकम 2। ठीक है, सेकंड रो को देखिए, सेकंड रो से रो 3 को माइनस करना है, तो 1 - 1 1 - 1 0, -1 -1 -2, 1 -1 will become 2, राइट, एंड दिस थर्ड सेम एज इट इज। अब क्या करते हैं, इसको आप देखिए, नाउ इसको एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग कॉलम 1। कॉलम 1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो 0 आएगा, 0 -0 +1, और यहाँ पे डिटरमिनेंट बन जाएगा, 1 के एलिमेंट को ऐड करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, तो इट्स 0 2 -2 एंड 2, राइट। a square b square c square, and it can be written as this 0 minus minus plus 4, so it can be written as 4a square b square c square, and that what we need to prove in this question, so is equal to RHS, right? So like this we can solve it. I hope this question is clear to you.